Hello and welcome to LNT Education. So, dear students, examination 21st February. ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସୋ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ରିଭିଜନ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ରିଭାଇଜ କରିବୁ ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଓକେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି LNT ଏଜୁକେସନର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁଟିରେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନଫ୍ଲାସନ୍। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇନଫ୍ଲାସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ଇନଫ୍ଲାସନ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବା ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ ଯଦି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବା ସେଇ ସେବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବୁ ନା ଏହାକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସିଚୁଏସନ ବୋଲି କହିବୁ। ହଁ ନାଇଁ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେମନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ବୁଝିବେ ଜଣେ ଯେତେ ପୁଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ତ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ତା ସହିତ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆସବାବପତ୍ର ଯାନବାହନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ କ୍ରୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ଏଇସବୁ କ୍ରୟ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ମନେକର କି ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତ ଡାଲି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପର କେଜି ସପୋଜ 150 रुपीज ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଯଦି ଏବେ ସେଟା 170 କି 180 रुपीज ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସିଚୁଏସନକୁ କ'ଣ କହିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଇନଫ୍ଲାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ। ତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କର ଚଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେଭିଙ୍ଗସକୁ ବି ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଯଦି ଦର ବଢ଼େ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖାଉଟି ଉପରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପକେଇବ ନା ତାର ପକେଟରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତା ସେ ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ତାର ସଞ୍ଚୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଓକେ। ଆଗକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବା ଇନଫ୍ଲାସନ ଆକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ ଯାହା କହନ୍ତି WPI ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଉଟି ଦର କହନ୍ତି ସୂଚକ CPI କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇନଫ୍ଲାସନ ବା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓକେ। ତାର ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକର କ'ଣ ଆମେ ଦେଶରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆକାରରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ 460ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 460 ଅଛି ତ ଇଏ ଆମର ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ଇଏ ବହି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ ବି ହେଇନି ତ ତେଣୁ ତ ଇଏ ସେ ସମୟର ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିଲ
460 460 द्रव्यर मूल्य को पाइकारी दर सूचक प्रस्तुत करने व्यवहार कराउछि। ओके से भली खाउटी दर सूचक प्रस्तुत करने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो साधारणतः आम कौन खाउटी माने व्यवहार करुवा विभिन्न द्रव्यर मूल्य को विचार को नहीं खाउटी माने कि तुम्हें माने आमे माने जो मैंने समाज में साधारण वर्ग लोक मैंने अच्छा जो मैंने सोसाइटी हाई क्लास अच्छा खाउटी बोली कहवा। ओके अच्छा विशेषकर कौ मान प्रति विशेष ध्यान था ना जो मैंने श्रमिक गोष्ठी जो मैंने दिन मजुरिया जो मैंने दैनंदिन जीवन में व्यवहार कर द्रव्य स्थान पाई थे जो मैंने श्रमिक गोष्ठी अटंती जो मैंने गरीब जो मैंने दिन मजुरिया से दैनंदिन जीवन में जो जिन जो द्रव्य को व्यवहार करती से द्रव्य से स्थान पाई था बुझल। अच्छा तो यही प्रक्रिया अनुजाई देश में बिक्री होता विभिन्न प्रकार द्रव्य और सेवार दर एक निर्दिष्ट वर्ष में जहाँ आकलन कराए 100 बोली धरा जाए एवं परवर्ती वर्ष मानक उक्त द्रव्य सेवार दर जहाँ हुए से वर्षर सूचक निर्धारित कराई बुझ कौन ये गोटे बेस इयर धराई था मनकर मुझे कहि 2022-23 मनकर गोटे द्रव्य जार प्राइस के 100 टका धरवा जो 2023-24 से प्राइस आम 125 टका ही गला ताहले मोटी केते कहबी ना मते केते ना एठी मोर 25% रो कोन आमर होची वृद्धि हला 25% तार इन्फ्लेशन हला तार दर वृद्धि हला। ओके तो सबले गोटे मूल वर्ष को आम नवा मूल वर्ष सहित आम ता पर वर्ष को कंपेयर करिबा। ओके लिखाई गोटे निर्दिष्ट वर्ष को मूल वर्ष भाव धरा जाई थाए एवं ताहा तुलन परवर्ती वर्ष मानकर दर सूचक हिसाब करा गोटे एग्जांपल देइछि उदाहरण स्वरूप मूल वर्ष तुलन कौन द्रव्य बा सेवार मूल्य रे परवर्ती जदि 20% वृद्धि होउछि ताहले द्वितीय वर्ष दर कत हम 100 रु बढ़ी 125 कहलु मनकर 2022-23 रे गोटे द्रव्यर मूल्य 100 टका अछि जदि से द्रव्यर मूल्य 2023-24 आर्थिक वर्ष में 125 टका होउछि ताले फ्लैट तार 25% बढ़ुछि। ओके तो क्लियर कथन डाउट होला क्लियर तो ओके से भलिया उभय पाइकारी दर सूचक एवं खाउटी दर सूचक क्षेत्र में यही प्रक्रिया दर वृद्धि निरूपण कराइते दुईटी क्षेत्र में उभय डब्ल्यूपीआई आउ सीपीआई तो यही दुईटी दर सूचक क्षेत्र में यही प्रक्रिया आमर दर वृद्धि निरूपण कराइते। ओके देशर पाइकारी दर सूचक वृद्धि पाइबा शुभ लक्षण नुहे तो जदि आमर डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ी जाए ना तो जमारू शुभ संकेत नुहे कहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स उपरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निर्भर करें सीपीआई निर्भर करे यदि होलसेल प्राइस बढ़ी जाए ताले कौन हम तो देशर निहाती यह गोटे शुभ संकेत नुहे कारण यह देशर उत्पादन क्षेत्र में गोटे प्रतिकूल प्रभाव पकाए पाइकारी दर सूचक बढ़ले खाउटी दर सूचक बढ़े जब कहीगले नहीं जो तुम पाइकारी दर सूचक जदि बढ़िला डेफिनेटली तार प्रभाव क्या पड़ो ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बा खाउटी दर सूचक उपर पड़ो या द्वारा कौन हम ना आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करते विभिन्न प्रकार सामग्री महंगा हो ओके जब प्रत्येक सामग्री महंगा हो जाए तो निश्चित भाव में यह आम जीवन यापन प्रलय को प्रभावित कर। ओके मुझे प्रभावित केमती कर ना साधारण लोक पाखे सेविंग्स आउ रही ओके संचय किसी आउ रही संचय मूल्य कमिज ओके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अधिक अधिक खर्च हो पड़ो क्लियर है आगु जा देख बक्स कौन लगी निजर आवश्यकता को पूरण करने विभिन्न द्रव्य और सेवा क्रय करी प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में आत्मसंतोष लाभ करुवा व्यक्ति विशेष को उपभोक्त बा खाउटी कहबा खाउटी क्या कहती खाउटी की कौन कह जाए उपभोक्ता कह जाए क्या कहबा ना निजर आवश्यकता को पूरण करने विभिन्न द्रव्य और सेवा क्रय करी विभिन्न द्रव्य और सेवा को किणिकी आमे तारू प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में आत्मसंतोष लाभ करुवा व्यक्ति मान को उपभोक्ता बा खाउटी कहती। फॉर एग्जांपल मनकर मोर गोटे आवश्यकता पड़ला यो एटा किणा एटा मैंने कौन ना यहाँ हूँ मैंने कौन ना मुझे यूट्यूब क्लास कर तुम पढ़ाऊँगी तो मतलब माइक टे दरकार पड़ा ओके तो ये माइक टा मुझे किणिली ये मो द्रव्य ताको किणी सारा मुझे कौन मुझे सेवा सेवा प्राप्त कली
डायरेक्टली सेवा पाइली कौन सेवा पाइली ना या व्यवहार करके मु यूट्यूब क्लास कर पारि ओके तो मत कौन कला जो द्रव्य ठू डायरेक्टली मु सेवा पाइली प्रत्यक्ष मत सेवा मिलला एवं मोर आत्मसंतोष लाभ करी तेणु मत कौन कह खाउटी बा मत उपभोक्ता बोली कह ओके हाँ गोटे मिनिट ओके तो जना पड़ला कौन उपभोक्ता खाड़ू क्या कहवा क्लीयर है तो नेक्स्ट आम जा कौन दर वृद्धि कारण पढ़ा देख दर वृद्धि विभिन्न कारण सब रही है तो ता भर आम दीटा मुख्य कारण डिस्कसन करवा ओके क्लीयर है तो दर वृद्धि बहुत सारा तो कारण अच्छी आम बर्तमान ये दुईटी मुख्य कारण को डिस्कसन करवा देख प्रथम कारण कौन है फर्स्ट कारण डिमांड सप्लाय ये हूँ दीटा मेन जिन बुझे चेस्ट कर जदि मार्केट रे बाजार रे लोक मान डिमांड अच्छी बट से ही मात्रा सप्लाय ना ताले कौन हम दर वृद्धिटा निश्चित भाव हम फॉर एग्जांपल मन कर बाहागर सीजन आसी तो बाहागर सीजन जमी झील मान घर घरे जो फ्रिज दि जाए साधारणतः जो डिमांड फ्रिज दू जदि गोटे मार्केट रे गोटे दुकानी पाखे गोटे मार्केट रे गोटे दुकान अच्छी गोटे सप्ट अच्छी से केवल कौन कर रेफ्रिजरेटर से सेलिंग कर तो देखला कि वर्तमान ता पाखे मनकर 10टी बा 20टी रेफ्रिजरेटर अच्छी एवं एका सांगे मनकर 50 जन कस्टमर ओके 50 जन कस्टमर ताक आसिले कि आमको यही डेट्रे फ्रिज दरकार कहीं आमर जिओ बाहर डिमांड द्वार अच्छी तो से क्षेत्र में कौन हम ना से जो 50टा कस्टमर अच्छा बट 50 जन कस्टमर को डिमांड को फुलफिल करने सप्लाय नहीं मात्र 20टी फ्रिज अच्छी तेणु से कौन कर यही सिचुएसन से कौन कर रेट को बढ़ाई प्राइस को बढ़ाई ओके तो जो जदि रेट थी जो 15,000 हुए 18,000 कर दी पारे 20,000 कर दी पारे कहले कौन हम ना ये जो 50 जन भर हुए तो कभी कि 30 जन हो बुझल तो डिमांड सप्लाय हो जिन से जदि मार्केट रे डिमांड अच्छी सप्लाय नहीं ताले कौन हम ना रेट बढ़ी ही बढ़ ओके देख लोक मान चाहिदा अनुजाई जदि बाजार रे यथेष्ट परिमाण कौन द्रव्य बा सेवार जोगाण संभव हो न पारे से द्रव्य सेवार मूल्य वृद्धि होता है सिमिल सब कहली यह व्यतीत आउ कौन हो पारे ना उत्पादन क्षेत्र में कंचा माल दर श्रमिक मान मजूरी माल परिवहन कर खर्च यदि वृद्धि हुए ताहले दर वृद्धि पे फॉर एग्जांपल गोटे रेट जदि मु कहबी पेट्रोल रेट जब बढ़ी जाए कि डीजेल रेट बढ़ी जाए तो पेट्रोल डीजेल रेट जब बढ़ तो निश्चित भाव कौन हम ना ट्रांसपोर्टेशन व्याहत हम जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता से ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ी जब ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ी अल्टीमेटली कौन हम तो से जो ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ले तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चटा सह किए ना कंपनी जो मालिक से सह कारण से कंचामाल नहीं आसी तो अल्टीमेटली से कौन कर ना फाइनल प्रोडक्ट उपर रेट से बढ़ाई देव तो से कहला जदि उत्पादन क्षेत्र में कंचा माल प्राइस जदि बढ़ी जाए ओके मैंने गोटे कंचा माल कौन गोटे द्रव्य को तैयारी करने जहाँ मौलिक आवश्यकता जहाँ प्राथमिक आवश्यकता को कंचा माल बोली कहवा ओके मनकर कटन ड्रेस तैयारी कर कटन ड्रेस तैयारी करने कौन हो कटन दरकार जब कटन प्राइस बढ़ी जाए ताले आम कंचा माल कहवा ना कटन प्राइस बढ़ जाए अल्टीमेटली तैयारी होता पोशाक मूल्य बढ़ी ओके तापर श्रमिक मान मजूरी जब श्रमिक मैंने कौन स्ट्राइक करती मजूरी को बढ़ाई मजूरी यदि बढ़ी जाए बा माल परिवहन करने खर्च अर्थात मुझे कहली जब पेट्रोल बा डीजेल रेट बढ़ी तो अल्टीमेटली परिवहन खर्च बढ़ी जाए ताल निश्चित भाव में यही क्षेत्र में द्रव्य और सेवार दर बढ़ ओके ये गोटे एंगल गला बुझे कौन कहलु तो फास्ट कौन कहला ये ना जदि मार्केट रे द्रव्य बा सेवार जोगाण ओके तार जोगाण ठू जो चाहिदा अधिक थाए से क्षेत्र में कौन दर बढ़ रेट बढ़ बा सेकेंड जिन कौन कहलु यदि उत्पादन क्षेत्र में कंचा माल दर बढ़ी जाए श्रमिक मानकर मजूरी बढ़ी जाए और माल परिवहन खर्च यदि बढ़ी जाए अर्थात यदि ट्रांसपोर्टेशन प्राइस यदि बढ़ी जाए तो निश्चित भाव में कौन हम ना दर वृद्धि हम बुझल क्लीयर है नेक्स्ट आउ गोटे आर रही पॉइंट रही ना कौन ना बेले बेले कौन होता है ना विभिन्न असामाजिक व्यक्ति ओके तो से जाणी शुणी कौन करती गोटे बेआईन कार्यकलाप करती कौन करती गोटे कला बजारी करती
ମହଜୁଦକାରୀ କରି ମାନେ କଳା ବଜାରୀ ମହଜୁଦକାରୀ ବୋଲି ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। ଆଇନକୁ ନ ମାନିକି କଣ କରନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଅଯଥା ମୂଲ୍ୟ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମହଜୁଦ ରଖିକି ହେଲା ତାହେଲେ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯଦି ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ମହଜୁଦ ରଖେ ଯଦି ସେ ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଏ ନ କରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତ ତାର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଗୋଟେ ଦେଖାବ ମାର୍କେଟ ଦେଖାବ ଅଭାବ ଦେଖାବ ତ ଅଭାବ ଦେଖାହେଲେ ତ ତା ରେଟ୍ ବଢିଯିବ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ତ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ସପ୍ଲାଏ ଆସିପାରୁନି ତ ରେଟ୍ ବଢିଯିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ସିଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍କାର୍ସିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯାହାଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଓକେ ତ ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଏ। ଓକେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ପ୍ରାଇସ୍ ତାର ବଢିଯାଏ। ତ ଲାଭଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ମହଜୁଦକାରୀ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ଲାଭଖୋର ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ମହଜୁଦକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କହିଦେବେ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଇଲାଣି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିଦେବେ ବାସ୍ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ତାକୁ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଓକେ ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଆମର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏମାନେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ ଗୋଦାମରେ ମହଜୁଦ କରି ବଜାରରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ଅଛି କି ତମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହଜୁଦ କରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ଲୁ ହବା ଦରକାର। ଓକେ ତ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନକୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଉଟି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଖାଉଟି ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା କୋଉଟା ଉଠେଇ ନଥିଲି? ଆଚ୍ଛା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଜେଟ୍ କରନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ସରପ୍ଲସ୍ କେବେ ହୁଏନି ସବୁବେଳେ ଆମର ବଜେଟ୍ କମ୍ ହେଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ଆମର ସେଭଳିଆ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଯଦି କୃଷି ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହଣ କାରକ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପରୋକ୍ଷ କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହନ୍ତି। ଓକେ ଯଦି ଜିଏସଟି ଯଦି ଆମର କମ୍ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ ତାର କଲେକ୍ସନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢିଯିବ। ଓକେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଓକେ ଦର ବଣ୍ଟନ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହଟେଇବା କଳା ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କହନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଥାଏ ଓକେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓକେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ତ ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କଣ ତାର ଅଛି ଆଉ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଲା ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେଇନଥାଏ ବରଂ ଏହା ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଇନଫ୍ଲେସନ ନା ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଥା ଅଛି 2 to 6% 2% ରୁ 6% ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ ମାନେ 4% ରହିଲେ ଭଲ 4% ରୁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ 2 ରୁ 6% -2 ହେଲେ 2 ହେଇଯିବ +2 ହେଲେ 6 ହେଇଯିବ 2% ରୁ 6% ଯଦି ଭିତରେ ରହିଲା ଇନଫ୍ଲେସନ ତାହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଯଦି 6% ଟପିଯାଏ 7% 8% ଯେମିତି କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଓକେ ତ ଇଏ କଣ ହବ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କାରଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ହେଇଥାଏ ଗରିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ବିକାଶ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଯଦି କହିଲି ଯଦି 2% ରୁ 6% ଯଦି ଇନଫ୍ଲେସନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ଗ୍ରୋଥ ଠିକଠାକ ଚାଲିବ ଯଦି 6% ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗ୍ରୋଥ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନେ କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
तो टिके जदि रेट बढ़ले किसी क्षेत्र में उत्पादनकारी टिके अधिक फायदा मिल उत्पादन कर अधिक फायदा मिलला तो नेक्स्ट स्टेज रे से कौन करना सही द्रव्य को से अधिक मात्रा रे उत्पादन करथांती एवं बाजार में अधिक द्रव्य देखा मिलता है क्लियर है एसत दर वृद्धि हेल्ले उत्पादन क्षेत्र में नियुक्त होता श्रमिक मान मजूरी बढ़ निश्चित भाव में जदि दर वृद्धि हम तेणु जो आम रोचे उत्पादन क्षेत्र में श्रमिक मैंने कम कर सालेरी बढ़ यही दर वृद्धि साधारणतः ऋणग्रहीता जी ऋण ग्रहण करती कृषक रप्तानिकारी नुआ निजुक्ति खोजुवा व्यक्ति मान अनुकूल प्रभाव पके भल प्रभाव पके क्लियर है किंतु जो मैंने कौन लोन दियंती कुप्रभाव पकते कि दर वृद्धि मात्रा अधिक हेल्ले यह व्यवसायी मान अधिक लाभ पाइबार सुजोग सृष्टि करता है ओके जब दर बढ़ला ताले जो माने व्यवसाय अच्छे से फायदा उठेबे तो से कौन करेंगे ना अधिक अधिक प्रॉफिट मिल जाए ओके जदि देख कौन हो फॉर एग्जांपल जदि तुम पेट्रोल ना जदि टंकाटे बढ़ुची ना टंका 2 टଙ୍କା बढ़ुची तो बस भड़ा तापर दिन 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା बढ़ी कौन पे बढ़ुची ना ये कहे कि ना डीजेल बढ़ीला पेट्रोल बढ़ीला ओके कारण हूँ तो विशेषकर जो मैंने व्यवसायी था फायदा अधिक हम यही दर वृद्धि सुजोग नहीं कि लाभखोर असाधु व्यक्ति मैंने बेआईन भाव से द्रव्य को महजुद कर रखिए कर मार्केट रे गोटे कृत्रिम भाव सृष्टि करेंगे से गोटे कौन करेंगे ना अधिक दर में बिक्री कर अधिक अधिक लाभ कमेबे क्लियर है तो यही दर वृद्धि साधारणतः खाउटी मानकर जीवन यापन प्रणाली को प्रभावित करे ओके दर वृद्धि कौन हम ना आमर दैनंदिन जीवन को निश्चित भाव कुप्रभाव पकेब जमी देख साधारणतः जब जो नित्य व्यवहार जिनस चाउल कूओ अटा कूओ तेल डाली क्षीर पर नित्य व्यवहार जो पदार्थ गुड़ दर वृद्धि हो जाए यहीटा हूँ खाउटी मान को बहुत मात्रा बाधि था कष्ट देता है कहीं आमको या बहुत पैसा खर्च होता है जमी देख दरमा वृद्धि पाई व्यक्ति मजूरी व पारिश्रमिक पाउथुवा व्यक्ति मध्यवर्त श्रेणी ऋणदाता जी ऋण दियंती शुल्कदाता जी टैक्स दियंती ओके वो आमदनकारी माने प्रतिकूल प्रभाव पके खराब प्रभाव पके मन रखियो क्या ना जो मैंने जो सालेरी पर्सन जो दरमा पाती जो मजूरी व पारिश्रमिक पाती डेली जो पाती मजूरी पाती जो मध्यवर्त श्रेणी अटंती जो लोन दियंती जो मैंने जो टैक्स दियंती तो से जो मैंने आमदनी करती गोटे खराब प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव एथपाई बजार में विभिन्न सामग्री दर वृद्धि को नियंत्रण कर खाउटी मान को शोषण बचाई सरकार केते पदक्षेप ग्रहण कर ओके तो मार्केट जो दर बढ़ी होउची खाउटी मान जो शोषण होउचंती तो सेमाने किपरि बर्तिबे तो यही क्षेत्र में सरकार कौन करती ना किसी पदक्षेप ग्रहण करते देखो पढ़िया कौन सब पदक्षेप ग्रहण करती तो फास्ट ये कौन कहला मुद्रागत प्रतिकार फास्ट जिते बड़े आम देश में दर वृद्धि हुए तो कौन हम ना से समय आमर देशर जो सर्वोच्च बैंक ओके बैंकर ऑफ द बैंक कह जाए कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कौन करे मुद्रा प्रचलन को संकुचित करते मार्केट रे जो मनी सर्कुलेशन होना से रेस्ट्रिक्ट टाइप लगे दिए तो कम कर दिए या द्वारा कौन हम ना मुद्रार परिमाण आम मार्केट रे कमिज लोक पाखे कम मुद्रा कम मुद्रा कौन हम गोटे कौन द्रव्य को किणापी पाखे तो पैसा नथिबो ओके तेणु डिमांड आम कमिज द्रव्य को क्रय कर क्षमता कमिज तेणु से द्रव्यर डिमांड कमिज तो डिमांड कमिले अल्टीमेटली आम प्राइस आउ थे स्टेबल हो बुझ कहली कहती मुद्रागत प्रतिक्रिया बोली कहती तो ये स्टेप किए निए ना आरबीआई निए बैंकर्स ऑफ द बैंक मोर आरबीआई नहीं था बुझल सेकेंड देख राजस्व संक्रांतीय प्रतिकार अच्छा दर वृद्धि को नियंत्रण करने सरकार विभिन्न समय विभिन्न प्रकार द्रव्य उपर टिकस व्यवस्था लागू करते टिकस साधारणतः नित्य व्यवहार जो खाउट द्रव्य व्यतीत अन्य खाउट द्रव्य भोग विलास सामग्री उपर धार्य होता है ओके तो जो टैक्स जो लगुच ये तो नित्य व्यवहार जिन सब लागू लगुच ता छड़ा किसी आम रही लग्जरी आइटम रही भोग विलास सामग्री रही लगे थे जहाँफल उच्च आय वर्गर व्यक्ति विशेष यहाँ द्वारा प्रभावित होता है ओके जो मैंने जिन डेली कंज्यूम कर कुप्रभाव पड़ता है कारण अधिक टिकस जो लोक मान निकट में बड़का आयर परिमाण कम हुए यदि मोर अधिक टैक्स दि जाए ना लोक मान निकट में कौन ना बड़का आयर परिमाण कमिज कारण टैक्स देते पैसा सरीगला सब ओके तो लोक मान गोटे क्रय शक्ति ह्रास पाइब तो यही व्यवस्था दर वृद्धि को नियंत्रण कर किसी मात्रा कही सहायक होता है यहाँ नियंत्रण करने भारत में जो द्रव्य और सेवा कर जीएसटी आम चली जीएसटी प्रचलन कौन होना किसी मात्रा कौन होना जो इनफ्लेसन कंट्रोल
देन थर्ड देखो साधारण बंटन व्यवस्था देखो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोटा कि सरकार कौन करते ना दर वृद्धि समय सरकार ये जो द्वितीय व्यवहार्य सामग्री को जोगाई देवाई गोटे पदक्षेप ग्रहण करते ओके अवश्य यही व्यवस्था समस्त नुहे एटा केवल बीपीएल जो मैंने गरीब और दारिद्र्य सीमारेखा तले अच्छी से ओके बजार दर ठू से कौन करा टिके कम रेट यथेष्ट कम दाम से चाउल गहम चीनी किरोसिन सब जोगे दि जाऊँगी बर्तमान पूरा फ्री कर ओके याद्वारा सरकार एवं 4 वर्ष पर्यंत पूरा फ्री कर कौन पैसा देवाक पड़ो ना जो राशन रही जो दुकान रही बुझे राशन दुकान मान तुमको ये जिन फ्रीली अवेलेबल हो बर्तमान दि जाइए टंकिकिया चाउल प्रदान को उदाहरण नहीं जाए ओके तेज चाउल टंकार कि आना पूरा सब फ्री होती तो तुमको से फ्री आनीपर ओके अच्छा देन फोर्थ देख कहला शासनगत दर व्यवस्था देख दर वृद्धि समय केतक असाधु व्यवसायी और उत्पादनकारी विभिन्न प्रकार खाउटी द्रव्य को बहिरी रख फास्ट कहीगली या फल से द्रव्य गुड़िकर आवश्यक परिमाण बजार उपलब्ध हो न पारू अहेतुक मूल्य बढ़े तो जेहेतु से द्रव्य को स्टोर कर रखिदे तो मार्केट से द्रव्य गोटे कौन सृष्टि हम गोटे हूँ तार गोटे चाहिदा सृष्टि हम बट चाहिदा सृष्टि से द्रव्य ना तो कौन हम ना तो से जाणी शुणी कौन करते से द्रव्य अधिक पैसा से चार्ज करती ए प्रकार परिस्थिति को नियंत्रण करने सरकार विभिन्न प्रकार द्वितीय व्यवहार्य पदार्थ गुड़िक दर स्थिर कर से दर में बिक्री करने व्यवसायी संस्था मान को दूसरी तो गवर्नमेंट कौन करते ना लोक मान जहाँ डे टू डे लाइफ व्यवहार होती प्रति गोटे सी प्रत्येक जिन गोटे फिक्स रेट कर रेट को कौन कहते सबू रिटेलर मान तो सही रेट्रे बिक्री करने इंस्ट्रक्शन मिली दर स्थिर कर दर में बिक्री करने व्यवसायी संस्था मान को दूर था आलू पियाज किरोसिन चीनी पेट्रोल रंधन गैस प्रभृति द्रव्य समूहर दर वृद्धि नियंत्रण करने सरकार ए प्रकार व्यवस्था ग्रहण करते ओके एथि बेले बेले सहरांचल बजार और ग्रामांचल हाट मानक आलू पियाज परी सामग्री अपेक्षा कम दर जोगे देवार व्यवस्था है जानते कि आम जो गवर्नमेंट कौन करे विभिन्न अर्बान एरिया रूराल एरिया सब कौन करे विभिन्न संस्था द्वारा से कौन करे आलू पियाज से पूरा सस्तार जोगे था ओके अच्छा तो एतर भिन्न फलप्रद उत्पादन नीति न्याय संगत बंटन नीति सुसंगत व्यय नीति प्रभावशाली वैदेशिक वाणिज्य नीति यही सब नीति जनसंख्यार नियंत्रण तो यही सब जिन ठीक कंट्रोल कर कौन हम ना आमर कौटना कौट आमर जो हूँ इनफ्लेसन जो रही जबर जो कौन रही कौन दर वृद्धि को नियंत्रण कर ओके तो ये थिला ए चैप्टर एंटायर डिस्कशन आशा करे आज लेक्चर टी तुम मन को पाई जदि भल लगे लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो अन्य फ्रेंड्स मान को शेयर करने कहबो ओके तुम मतलब लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ ताकि मु प्रत्येक दिन एमती कंटेंट तुम आनी जोटा तुम मान एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हम ओके मु चाहिए ये वीडियो को तुम शेष देख लाइक कर शेयर कर बहुत पत्रे सब्सक्राइब कर जय हिंद जय जगन्नाथ आज पे।